శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. కళ్యాణోత్సవానికి గాను పేర్లు నమోదు చేయించుకున్నటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే अस्मिन् वर्तमाने आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు
ధర్మపత్ని పేర్లు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం, సహ పరివారాణాం, సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణా కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం कारयिष्ये సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஓம் நமோ நாராயணாய. திருமலையில் நின்ற திருமாலே, நாடியவர்க்கெல்லாம் வேண்டிய நல்விடும் திருவெங்கடவா, உமது அடி பணிந்து வினைவியை வேண்டினேன் வேத முதல்வா. உலகம் உண்ட திருவாயா, ஊரு கலைந்து ஆட்கொள்ள என்னை நீயே என்று நமது மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். சர்வம் விஷ்ணுமய ஜகத் என்கிற மூதுரைப்படி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அர்ச்சய ரூபமாய் திருமலையில் சேவை சாதிக்கும் திருவேங்கடமுடையான். ஆகவே இது சர்வம் வெங்கடேஷமய ஜகத், அந்த கலியுக தெய்வமான திருவெங்கடயானின் உற்சவ மூர்த்தியான உபய நாச்சியர்மார்களுக்கும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களோடு நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து எம் பெருமானின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்களை அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். பக்தர்களே, திரு கல்யாண ஆரம்பத்தில் முதலில் சங்கல்ப பூஜையை சேவித்தோம். அதன் பின் விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வச்சனம் கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. ஸ்ரீ யதிராஜ சப்ததியில் ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரை பற்றி ஒரு ஸ்லோகம் உள்ளது. அதில் தமிழாக்கம் இது: எவருடைய கை பிரம்பி முனை அசைவதில் இந்த உலகம் காட்டப்படுகின்றதோ அந்த ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனர் சூத்ராவதி அம்மையாருக்கு கணவராய் எம் பெருமானுக்கு சேவைக்கு தலைவராய் உள்ளாராம். அவரை நான் வணங்குகிறேன் என்பதாகும். எம் பெருமானின் சேனாதிபதி, சேனை முதல்வர் என போற்றப்படுபவர். இவரிடம் தன்னுடைய பொறுப்புகளை ஒப்படைத்துவிட்டு பகவான் வைகுண்ட லோகத்தில் நிம்மதியாக இருக்கிறார்களாம். ஓம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसां तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सण्डिलपरिदेवरिसनासुरोवर्तन्त्रपशुद्धं शान्तत्वं सकपुण्यावाचकर्म करिष्ये. ओम धारा सप्तश्रमांशेषु सरत्सरेत्सु विपूर्तेषु अपोभिरह्णन् प्रतिपादेशे गृहणामृतागं शर्म शर्मा यदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुद्धमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मतां तरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यसरस्वती आपो वायुदं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशुवापो नमापो सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो युजुगुष्याप सत्यमाप सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापोम् अस्मिन् कुम्भेङ्गा सदिस्थलमावाहयामि एतेषां सहस्रमिज्ञापाजाविदाः पुत्रा तेभ्यो नन्द्रस्य तद्विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मर्दस्वस्य वर्णमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्येदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एते प्लवतोस्त्रोत्तराभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षराः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं
विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमानसकर्मणानि निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं च दुर्बाहुं शङ्खचक्रसंनिमितं ज्ञाप्तिं सङ्केतं शुभस्वरथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाङ्कमच्चेत् आग्नेयोऽस्माद्दिदामेत्ताश्रे दातं हेतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां प्रेष्यां दिशाभुधानामनादिः यामे शिस्तान् निन्दान् दातु ओं भूः पद्माकारुणे सक्षनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीसेन सेदमासनं यशक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि यशक्सेनस्मदा राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासीता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य च कुर्यात् सविर्वारस्य सक्सेनस्य पूजनं भगवद्विरण्नाथः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व तस्य प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु वापान् शाम्यन्तु वायितेयः शुभान् वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु वापान् शाम्यन्तु वायितेयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु वापान् शाम्यन्तु वायितेयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनता विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्वांसरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यदेतो आवृतानि पश्वसे इन्द्रस्य युज्यसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रुवागं दत्समिन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रेगं सते द्रविणोदा वीरवतिविषण्णो द्रविणोधाराः अस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुरुविदो विषं यदा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत् सूर्यो गच्छेति यत्तदहन्यं पश्येति तावत् कुरुते यत्कारी स्यात् पुण्याः यव कुरुते ओं भूः अत्यपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिल परिधि परिस्रः सर्वतन्त्रपरिशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचनं पुण्यां ब्रुवन्तो ब्रुवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रुवन्तो ब्रुवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रुवन्तो ब्रुवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रोऽर्धस्वा स्वस्तिनपूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्टेमि स्वस्तिना बृहस्पति ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिल परिधि परिस्रः सर्वतन्त्रपरिशुद्धत्वं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टामय भोस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षुषे योपस्यपदमारदस्तस्य भाजयतेनः उषतीरिव मातरः तस्माहरङ्गमावोय सक्ष्याय जन्मथा आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाया सुजातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्नीया गर्भं दद्रे विरूपास्तानाः भस्वग्स्याना भवन्तु ओमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोता सपुनात्मा पुनन्तु महादेवजनाः पुनन्तु मनवाधिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने क्रत्वा कतुगुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सुधाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामुगं हिरण्मयं तेन ब्रह्म विदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेति सह मा पुनातु सोमस्वस्यावरुणः समीच्याः यमो राजाः प्रमणाभिः पुनातु मा जातवेदामूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगाति भेषजं शन्नो अस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राचान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरा मार्जयन्ताम् उदीचान् दिशा पवोषधयो वनस्पतिः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः मिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अथोदराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोःष्पदे प्रजानि हस्मान् स्वाविशो निमिवो भवानः यत्ते महे प्रदन्नो शश्वशन्ये दद्दपदे शञ्चतुष्पदे वास्तोःष्पदे शग्मया संसदा ते सक्षीमहि हैरण्या गातमत्याः आवह क्षेमयुते वृण्णो यूजं पातस्तस्तभिः सदानः अमीवः वास्तोःष्पदे विश्वारूपाण्या विषन् सखास सेवयेदिनः
अणोरणीयान् महतं हि यानात्मा गुहायानि दोस्यन्तो तमः कथं वसति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्तार्च समितः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाये चरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्तसप्ताम् अतः समुद्रागिरिः सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाष्टतीनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणान्माय सक्सेनाय नमः पुनः पाद्याचं सर्पयामि वरुणान्माय सक्सेनाय नमः यथा भासा गुरोभारं निवेदयामि ताम्बूलं सर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, இந்த நித்திய கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாணத்தில் சேன நாயக்கரான விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனையும் மங்கள நீரால் செய்ய வேண்டிய புண்ணியாக வச்சனமும் முறையாக முடிகிறது. இதை அடுத்து அஷ்டதிக் பாலகரையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் கைங்கரியம் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மங்கள நீரை தெளித்து பாலிகை எனப்படும் நவதானியங்களையும் புஷ்பங்களையும் சேர்த்து இப்போது பூஜை செய்கிறார் நம் அர்ச்சகர் சுவாமிகள். தசரதன் என்ற அரசன் அயோத்தியை அரசாண்டு வந்தான். அவனுக்கு கோசலை, கைகேயி, சுமித்ரை என்று 3 மனைவியர் உண்டு. எல்லா செல்வமும் இருந்தும் குழந்தை செல்வம் மட்டும் இல்லையாம். அதனால் தசரதன் பெரிதும் வருந்தினான். புத்திர பேருக்கான யாகங்கள் பல செய்தான். அதன் பயனாக அவன் மனைவியர் 3 கருவுற்றனர். தசரதனின் முதல் மனைவி கோசலை ஆவாள். அவள் வயிற்றில் இருந்து திருமால் ராமராக பிறந்தார். 2ஆம் மனைவி கைகேயி வயிற்றில் பரதன் பிறந்தான். 3ஆம் மனைவி சுமித்ரை வயிற்றில் லக்குவன், சத்ருகன் என 2 பிறந்தனர். குலக்குருவாகிய வசிஷ்டரிடம் கல்வி, போர் பயிற்சி போன்றவற்றை கற்று சிறந்து விளங்கினாராம். விஸ்வாமித்ரர் காட்டில் வேள்வி செய்த போது வேள்வியை காக்கும் பொருட்டு ராமன், லக்குவன் இவருக்கு பல போன்ற மந்திரங்களை உபதேசம் செய்தாராம். தாடகை முதலான அரக்கர்களை வதம் செய்து முனிவருடைய கேள்வியை காத்தனர். கேள்வி முடிந்தவுடன் திரும்பி மிதிலை செல்லும் வழியில் கௌதம முனிவரால் சபிக்கப்பட்டு கல்லா கிடந்த அகலிகை மீது ராமனின் திருவடி பட்டதால் சாபம் நீங்கி மீண்டும் அவள் உண்மை உருவிற்கு வந்தாளாம். சனகன் என்ற அரசன் தன்னிடம் இருந்து விலை வளைப்பவருக்கு தன் அழகிய பெண்ணான சீதையை திருமணம் செய்து கொடுப்பதாக அறிவுறுத்தினான். பல அரசர்கள் முயன்றும் வளைக்க இயலாத அந்த வில்லை ஒரு கணப்பொழுதில் வளைத்து முடித்தார் அந்த ராமர். சனகன் மகிழ்ந்தது தன் மகள் சீதையை ராமருக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தான். திருமணம் முடிந்து வந்த ராமருக்கு முடிச்சூட்ட எண்ணினார் தசரதன். அதற்கான நாளும் குறித்து ஏற்பாடுகளும் நடந்த பொழுது கைகேயின் பணிப்பெண் கைகேயின் மகன் பரதனுக்கு முடிச்சூட்ட எண்ணி கைகேயிடம் தெரிவித்தான். கைகேயி முதலில் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. பிறகு பலவிதமாக சொல்லி கூறி கைகேயின் மனதை மாற்றி விட்டாளாம். அடுத்தது ரக்ஷாபந்தனம் கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. ஓம் ஷண்ணோன சத்தாந்த சோர்ஜாத்தாம் ஸ்வயம்புரக்ரேம் தேம் தாஜா நாகராஜமாவாஹயாமி சார்சேஷமாவாஹயாமி சேஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி பிரதிசரதேவதாभ्यो நமः. இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி இதமர்घ्यं சமர்ப்பயாமி இதமாக்கியம் சமர்ப்பயாமி சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம். ஸ்வஸ்தி நோ மிவேதாமஸ்வினா பகः ஸ்வஸ்தி தேவி திருநர்மணः ஸ்வஸ்தி பூஷாம் சரோதாதன ஸ்வஸ்தி द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं पभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य अस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्तमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वत्थे रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इदे कृधि स्वस्ति बन्धामनुतिरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्धताघ्नता जानता सङ्गमे महि स्वस्ते नन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सो बृहद्यसो नाभं वारुहेम
अम्होमुचामाङ्गिरसञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रयं मनसा जदाक्षं प्रेतपाणशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. பக்தர்களே, ரக்ஷா பூஜை இனிதே முடிந்தது. இதை அடுத்து ரக்ஷா பந்தம் கைங்கரியம் திருவாடிப்புறத்தை தமிழகத்தின் தென் பகுதியில் காப்பு திருவிழா என அழைப்பார்கள். அதை பற்றி இப்போது பார்க்கலாம். காப்பு என்றால் காப்பாற்றுவது. ஒரு குருவும் சீடனும் அடர்ந்த காட்டின் வழியே நடந்து வந்து கொண்டிருந்தனர். இரவு நெருங்கவே ஒரு மரத்தின் அடியில் உறங்கி காலை நடைப்பயணத்தை தொடரலாம் என்று முடிவு செய்து ஒரு மரத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதன் அடியில் உறங்கினர். மறுநாள் பொழுது விடிந்தது. குருவும் சீடனும் ஆற்றில் நீராடினர். இருவரும் சூரியனை வணங்கி அப்பொழுது சூரிய பகவான் ஆச்சாரியராக தோன்றி, வேத குருவே, உமக்கு வணக்கம், உங்கள் வணக்கத்தை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்றாராம். இன்று சூரியனான நான் மறைவதற்குள் உங்கள் சீடனின் உயிர் ஒரு ராஜ நாகத்தால் தீண்டப்பட்டு இறக்க நேரிடும். முடிந்தால் உங்கள் குரு வலிமையால் அவனை காப்பாற்றுங்கள் என்று கூறி மறைந்தானாம். குருவும் சூரியனை வணங்கிவிட்டு சீடனை கவலையோடு பார்த்தார். இருவரும் சிறிது பழங்களை பறித்து பசியாறிய பின் அருகே உள்ள கோயிலில் இறைவனை வணங்கினார். பின் ஊரை தாண்டி காடு வழியே நடந்து சென்றனர். சற்று களைப்பு ஏற்படவே இருவரும் ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்து கண் அயர சீடன் தூங்கினானே தவிர குரு தூங்கவில்லை. சீடனின் உயிரை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்து குரு விழித்திருந்தாராம். அப்பொழுது ஒரு நாகம் படம் எடுத்தபடி சீடனின் அருகே அவனை கொல்ல வந்தது. இதை பார்த்து பதைத்த குரு ராஜநாகமே நில் என்று ஆணையிட்டார். ராஜநாகமும் குருவின் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு நின்றது. குரு நாகராஜரை பார்த்து, நீ ஏன் சீடனின் உயிரை எடுக்கவே வந்துள்ளதாய் நான் அறிவேன். குரு பக்தி மிகுந்த சீடனை காப்பாற்றுவது ஒரு குருவின் கடமை அல்லவா? அதனால் என் சீடனின் உயிரை எடுக்க நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று தடுத்தாராம். இப்பொழுது ராஜநாகம் யோசித்தது. வேத குருவே, உங்கள் சீடனின் கழுத்தில் என் நாவை வைத்து இரத்தத்தை உறிஞ்சி எடுக்க வேண்டும் என்பது எனக்கு காலான் இட்ட கட்டளை. அனைத்தும் உணர்ந்த தாங்களே ஏன் கடமையை செய்ய விடாமல் இப்படி தடுத்து என்னை நிறுத்தலாமா என்று முறையிட்டது. உடனே குரு, அப்படி என்றால் என் சீடனின் இரத்தத்தை உறிஞ்ச வேண்டும் என்பதுதானே உனக்கு காலானிட்ட கட்டளை? சரி, சற்று பொறு என்றார். நானே அவனது இரத்தத்தை உனக்கு ஊட்டுகிறேன். அதை உறிஞ்சியதும் நீ உன் கடமையை செய்துவிட்டு பலனை பெறுவாய் என்று கூறி ஒரு சிறிய கத்தியை எடுத்து குரு அதை சீடனின் கழுத்தில் வைத்து இரத்தம் வரும் அளவு ஆழம் வைத்து கத்தியை கீறினார். தன் கழுத்தில் கூர்மையாய் ஏதோ கீறுவதை உணர்ந்த சீடன் கண் விழித்து பார்த்தான். குரு தன் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து கீறுவதை உணர்ந்த பின் கண்மூடி சிறிதும் அசையாமல் படுத்தபடியே இருந்தானாம். சீடனின் பல துளி இரத்தத்தை எடுத்த குரு அதை ராஜநாகருக்கு உணவிட்டார். ராஜநாகமும் குருவின் சாபத்துக்கு நாம் ஆளாகாமல் நம் கடமை நிறைவேறியதே என்று மகிழ்வோடு இரத்தத்தை உறிஞ்சிவிட்டு வந்த வழியே சென்றது. குருவின் சீடனின் உயிரை காப்பாற்றிய நிம்மதியோடு அவனது கழுத்தில் முன்னமே தான் வைத்திருந்த பச்சிலை சாற்றை பிழிந்து சீடனின் கழுத்தை பகுதியில் பற்று போட்டுவிட்டு நிம்மதியோடு உறங்கச் சென்றார். சிறிது நேரம் இருவரும் நன்றாக களைப்பு தீர உறங்கிய பின் எழுந்து அமர்ந்தனர். அப்போது சீடன் தன் கழுத்தில் பற்று இருப்பதை தொட்டு பார்த்துவிட்டு எதுவும் குருவிடம் கேட்காமல், குருவே, நாம் நடைப்பயணத்தை தொடரலாமா என்று கேட்டான். குரு புன்னகையுடன், சீடனே, நீ சற்று முன் உறங்கும்போது நான் உன் கழுத்தில் கத்தி வைத்த போது நீ என்ன நினைத்தாய்? உனக்கு பயம் எதுவும் உண்டாகவில்லையா என்று புன்னகையுடன் கேட்டார். சீடன், குருவே, என் கழுத்தில் ஏதோ உருவதை உணர்ந்தேன். விழித்து பார்த்தேன்.
கையில் கத்தியுடன் நீங்கள் என் கழுத்தை அறுப்பதையும் நான் உணர்ந்தேன். ஆனால் என் குருநாதராகிய தாங்கள் எனக்கு எந்த கெடுதலும் செய்ய மாட்டீர்கள் என்பதை நான் அறிவேன் 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 என்றாராம். அதனால்தான் நிம்மதியாக உறங்கினேன். இப்பொழுது எழுந்ததும் என் கழுத்தில் உள்ள மூலிகை பற்றை பார்த்தேன். என் குருநாதராகிய உங்களுக்கு என் ஊன் உயிர் உள்ளம் அனைத்தும் அர்ப்பணம். அதனால் எனக்கு எதிலும் எந்தவித கவலையும் இல்லை என்று கூறி பணிந்து நின்றானாம். குரு சீடனை ஆறு தழுவி எழுந்து அவனோடு நடக்கலானார். நண்பர்களே, நமக்கு விதித்தபடி நடக்கும் நல்லது கெட்டது எல்லாவற்றுக்கும் இறைவனே பொறுப்பு என்று அவனை சரணடைந்து விட்டால் நமக்கு நடக்க இருக்கும் தீமையும் இறைவன் அருளால் நன்மையாக நடக்கும் என்றாராம். இதில் சீடன் தான் நாம், குருதான் நம் கடவுள், ராஜநாகம் தான் நம் விதி. ஞான குரு இறைவன் சொல்லும் வார்த்தைகளை முழு நம்பிக்கையுடன் ஏற்று நம் வாழ்க்கையை சீரமைத்து கொண்டால் நம் வாழ்வில் எப்போதும் நல்லதே நடக்கும் என்றாராம். பக்தர்களே, அடுத்தது கைங்கரியம் தொடர இருக்கிறது. देव्या होता रावणंत पूर्वेरिष्टास्याम तन्वा सुवीराः मह्ये जन्तुम्यानहव्याको तिस्सत्यामन सौम्यास्तु येन मानिगाहं कथमच्चनाहं विश्वे देवासु अधिवोचतामि उद्घन्यमानमस्यामे ध्यां वाप्मानं यजमानस्यन्तु शिवानस्यन्तु पदश्चन्ना माता पृथिवीतोकसाता पोतह्यधनेन सौम्याः कृणध्वगं रक्षणा होतविंशतु यातवेद भुवनश्रेते हिंसतपसोज्जनिष्यते अग्निमश्वत्थादेव्यवागं समीगर्भार्जनेन व्योम्य भू घृतपतिको घृदयोनिरग्नि घृते समिद्धोक्तमस्यान्नं अपावरोहजातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आयुः प्रयागम्रीमस्मास्तेजस्रोदीधेनोदरोणे ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देशो दप्रसव ब्रह्मजज्ञानं परं प्रसादिमस्रच वेनावः स बुद्ध्या उपमा सविष्टा सदस्यो नमतस्तिवः ओं भू ब्रह्माण्डमावाहयामि ओं भो प्रजापतिमावाहयामि ओं स्वा पितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणेन्मायदमासनं सोमोधेनुं सोमर्वन्तमासु सोमवीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यमिच्छकं सभयं पितृश्रवणं ददातस्मै ओं भूः स्वमावाहयामि ओं भूर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं स्व इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवताबुद्धेतन्नागस्तपुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं श्रुतां मित्रलोकस्तत्रं विघ्नं यजमानशदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवताबुद्धेतन्नागस्तपुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं श्रुतां मित्रलोकस्तत्रं विघ्नं यजमानशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्येस्तो अग्नेः वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशुरस्य पवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देवसविधप्रसपनात्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्य रश्मिरापो देवीरग्रे भुवोग्रीं यज्ञं नेताग्ने यज्ञपतिं दत्त युष्माणिन्द्रस्तूर्ययुजमिन्द्रनिद्धं स्तूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवेणस्तुभोसि दक्षिणता विष्णोस्तुभोसि पश्चिमस्वदत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तुभोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सुन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवताबद्धेतन्नागस्तपुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुगतां मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवताबद्धेतन्नागस्तपुष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुगतां मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रणय दक्षप्रद ब्राह्मी तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपोपस्पृश ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवोत्सवमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आजभागे प्रजापतिष्ठनरभामि इन्द्राष्टनरभामि अग्नेष्टनरभामि सोमाष्टनरभामि अग्नेष्टनरभामि सोमाष्टनरभामि अग्निसोमाभ्याञ्जिष्टनरभामि प्रजापतिष्ठनरभामि ब्रह्मणेष्टनरभामि इन्द्राष्टनरभामि वसुभ्योष्टनरभामि मरुद्भ्योष्टनरभामि रुद्रेभ्योष्टनरभामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवेष्टनरभामि मित्राष्टनरभामि वरुणाष्टनरभामि आदित्येभ्योष्टनरभामि असिभ्याञ्जष्टनरभामि भूषणेष्टनरभामि कक्षाष्टनरभामि
कक्षदेत्समाष्टनृपामि औपासनयज्ञाष्टनृपामि यज्ञदश्वेभ्यो दिवेभ्योष्टनृपामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चरुन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्नेज्योतिषि समित स्वाहा अमृतं सुवारुणमसि अन्तर्दं रक्ष अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठां रक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्त्वा सविताप्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां संस्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षता च जरिभिरिमामे ज्येष्ठका धेनः सन्त्वेका च समुद्राश्चमुद्यञ्चातश्च परादश्च मामे ज्येष्ठका धेनः सन्तु ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुद्धाय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अविरप्रदसे नमः पंक्तिराजसे नमः विसर्पिणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा अनुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्रसव षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भमाणया यन्तीर्मात्मा जातवेदस्येनेध्वस्तवद्धेवद्धे जास्मान् प्रजया पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्या अस्मिन् औपासनाद्यूले ब्रह्मन् समुद्धम् आधास्ते आधस्व समेधे स्वाहा वायुयादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशमाहाभ्यः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अभावस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेशेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिर्या चर्मसावित्र्या गृहीत्वा व्याहतिर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भो स्वाहा ऐतेन मगुस्थाः नुमतेन मगुस्थाः सरस्वतेन मगुस्थाः देवसवितप्रासावीः ओं भूतिपुरोष्टमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघारहोमान्ते सर्वमन्त्रपुर्यादनात् प्राश्चात् तमतो दिवाय वैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओं मतो देवाः वन्दनोत विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानिदेवतं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाविचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वत्सलेतोः वृदानि वत्सुषे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमोजार्ध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भो स्वाहा ऐतेन मुगुस्थाः नुमतेन मुगुस्थाः सरस्तेन मुगुस्थाः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిత్తురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే
పువ్వులీయరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే. గగనత్తాలు చూపరి ఆనందం తస్య ఆగ్నే భాజయవమాః మోదః ప్రమోద ఆనందః ముష్కయోర్నితస్వః ప్రత్యైవ కామ్యస్య తృప్యాణి దక్షిణానాం ప్రతిగృహే. घृणाहि घृतवती सवितराधिपत्यैः पयस्वतिरन्तिराशानोऽस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्निहारास्येषाना सातो यामनोता बृहस्पतिर्मातरिस्रोतवायुः सन्धवाना वाता दिनो गृह्णन्तु. श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. श्रुतिस्मृतिर्दि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवम्. अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावर्णेरावृते अस्मिन् महतिब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराः कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपादालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षड्लोकानां अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्र फणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रदीकाख्याष्टदिग्दण्डि सुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजते. इंद्राग्नि यमुनिरुतिवर्णवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पदधिक्षीरशुद्धारकाख्य सप्तान्नवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रं च शाकितान्मलिपुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलयसह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजते. भारतकं पुरुषहारीणावृतभद्राश्वकेतु कमालकरमणक कुर्वर्षाख्य नवर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोरुहाकार 50 योजना विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत अनावृत महापातकादि समस्त दुर्दक्षयार्थम् दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामा सङ्घातव कालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलापकृष्णक्रमेण सर्वराष्ट्रपकृतसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रीणिगुदाग्निष्ठामद्रात्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपऋणवैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादियुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये. अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य
दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदा पद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरानुत भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरानुत भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवान और्ववैद्र पञ्चार्षे प्रवरानुत भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि ऋग्यजस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रव त्रयार्षेयप्रवरान्वित काश्यपसुगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां ऋणीत्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यामि विष्णुवेतुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा षड्गुण्य सर्वदेवता इवाकन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. பக்தர்களே, இந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அக்னி பிரதிஷ்டம், மதுபார்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்த சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பத்தை சேவித்தோம். அடுத்தது திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக இன்று தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களை மஞ்சள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் ஷோடச உபச்சாரங்கள் அனைத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நம் அர்ச்சகர் சுவாமி. எப்படியோ ஸ்ரீனிவாசன் பத்மாவதியையும் திருமகளையும் சாந்தப்படுத்தி, திருமகளே கோபத்தை விடு, உனக்கு நான் உண்மையை கூறுகிறேன், அது கேட்ட பின் உன் இஷ்டப்படி நடந்து கொள். நான் சொல்ல போகும் இந்த செய்தியை நன்கு புரிந்து கொள்வதற்கு பூர்வ ஜென்ம சக்தி வேண்டும். அதை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன், கவனமாக கேள். நான் ராம அவதாரத்தில் இருந்தபோது நீ சீதையாக பிறந்தாய் அல்லவா? அன்று நான் தந்தையின் கட்டளைப்படி உன்னையும் லக்ஷ்மணனையும் கூட்டிக்கொண்டு காட்டுவாசம் செய்தேன். காட்டில் நாம் ஒரே ஓலை வீட்டில் இருந்தோம். அப்போது மாயமான் ஒன்று வந்தது. நீ அதை விரும்பி கேட்டாய். அதை பிடிக்க நான் சென்றேன். நான் திரும்புவதற்கு நேரமாகி விட்டதால் எனக்கு ஏதோ தீங்கு ஏற்பட்டு விட்டது என்று எண்ணி லக்ஷ்மணனை என்னை தேடும்படி அனுப்பி வைத்தாய். அச்சமயம் கொடியவன் ராவணன் உன்னை அபகரித்து செல்ல முனிவர் வேடத்தில் நீ தங்கியிருந்த இடத்திற்கு வந்தான். அப்போது கருணை கடலான அக்னி பகவான்
உன்னை தனக்குள் மறைத்துக்கொண்டு தனக்குள் அதற்கு முன் சாம்பலாக இருந்த வேதவதியை உண்மை சீத்தை என்று ராவனுக்கு கொடுத்தார் அல்லவா? அந்த வேதவதியை ராவணன் உண்மை சீதையென நம்பி தன்னுடன் அழைத்து கொண்டு சென்றான். பிறகு நான் ஆஞ்சநேயர் மற்றும் பலரின் உதவியால் கடலை தாண்டி ராவணனை கொன்று உன்னை மீட்டுக்கொண்டேன். உலகத்தின் பழி தீர்க்க அப்போது உன்னை நான் தீயில் விழும்படி கேட்டேன். நெருப்பில் நீ விழுந்தவுடன் அதில் 2 பெண்கள் இருப்பதைக் கண்டு ஆச்சரியமடைந்தேன். தீயில் நீயும் வேதவதியும் இருந்தனர். எனக்கு அப்போது ஒன்றும் புரியவில்லை. என் நிலைமையை அறிந்து கொண்ட அக்னி பகவான் நடந்தவற்றையெல்லாம் எடுத்துச் சொன்னார். அந்த நேரத்தில் நீ என்னிடம் என்ன வேண்டிக் கொண்டாய் என்பது நினைவிருக்கிறதா? நான் கூறுகிறேன் கேள். நாதா, எனக்காக வேதவதி ராவணின் சிறையில் எவ்வளவோ இன்னல்கள் அடைந்திருக்கிறான். எனக்கு உதவி செய்த அவளை நீங்கள் கட்டாயம் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டாய். அப்போது நான் அந்த அவதாரத்தில் எனக்கு ஒரு மனைவிதான், ஆகையால் கலியுகத்தில் வேதவதியை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று ஆறுதல் கூறினேன். நினைவிருக்கிறதா? அந்த வேதவதியின் இப்போது பத்மாவதியாக அவதரித்திருக்கிறாள். இப்போதாவது உன் சந்தேகம் தீர்ந்ததா? நான் வாக்களித்தபடி என் வாக்கை காப்பாற்றிவிட்டேன். இதில் நான் ஒன்றும் தவறு செய்யவில்லை என்று எண்ணுகிறேன் என்றார். வெங்கடேஸ்வரர் அளித்த திவ்ய சக்தியால் முற்பிற்பின் விஷயங்களே அறிந்து கொண்ட திருமகள் தான் தவறுதலாக நடந்து கொண்டுவதற்கு வந்திருந்தேன். வெங்கடேஸ்வரிடம் மன்னிப்பு கேட்டாள். பின்பு பத்மாவதியை அணைத்து கொண்டு, தங்கையே, திவ்ய சக்தியை மறுத்து பொறுமை இழந்து உன்னை கண்டபடி கூறிவிட்டேன். அதையெல்லாம் நீ மறந்துவிட வேண்டும் என்று சொன்னாள் திருமகள். அடிக்கிற கைதான் அணைக்கும் என்ற பழமொழியை உணர்ந்த பத்மாவதியோ சிரித்து விட்டாளாம். ராமன் நாமம் சொல்லுவோம், காமக்ரோதம் வெல்லுவோம், சோகமான வாழ்விலே சொர்க்க வாழ்வு காணுவோம். நாராயணா நாராயண வா வா, உனை நாடி வந்தோம் என்னை தாத்தா, காரணர் திருமேனி கண்ணன் நீயே எமது களைப்பை போக்கி எருள வேண்டும் தாயே. கோயில் மலை பெருமாள் திருக்கோயில், கோயில் கொண்ட கோவலனே மாயா, நோய் நொடிகள் இன்றி நாங்கள் வாழ மாயவனே மனமிறங்கி வாவா என்றும் கூறினார். திருமகள் சாந்தமடைந்து உண்மையை அறிந்து கொண்டதை பார்த்த வெங்கடேஸ்வரர் மிகவும் சந்தோஷமடைந்தனர். அந்த சந்தோஷத்தில் திருமகளை பார்த்து, அன்பே, என் திருமணத்திற்காக நான் குபேரனிடம் கடன் வாங்கினேன், அதை தீர்க்க வேண்டும். எப்படி தீர்ப்பது என்று புரியவில்லை. வட்டிக்கு வேற பத்திரம் எழுதி கொடுத்திருக்கிறேன். ஆதலால் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும். என்னவென்றால், கலியுகத்தில் நீ என் தொண்டர்களாக செல்வந்தர்களுக்கு செல்வத்தின் மிகுதியாலும் கர்வத்தாலும் பாவச் செயல்களை புரிவர். அப்போதுதான் என் நினைவு அவர்களுக்கு வரும் என்றார். காப்பாற்ற வேண்டும் என்று என்னை நாடி வருவர். அப்போதுதான் அவர்களிடமிருந்து அசலுக்கும் வட்டிக்குமாக தொகை வசூல் செய்வது வருஷமும் குபேரனுக்கு கொடுத்து விடுவேன். கலியுகம் முடியும் வரையிலும் நான் குபேரனுக்கு பணம் செலுத்த வேண்டி வரும். பிறகு நாம் வைகுண்டம் பணம் செலுத்த வேண்டி வரும். பிறகு வாழலாம். அதுவரையில் நீ தாமரை குளத்தில் இருந்து தொண்டர்களை காப்பாற்று என்றாராம். ஆனால் உன் உண்மை உருவம் என் இதயத்தில் மட்டும் இருக்கட்டும், உன் சக்தி மட்டும் குளத்தில் உதிக்கட்டும் என்றார். ஸ்ரீனிவாசன் கூறிய வார்த்தைகளை திருமகள் ஒத்துக்கொண்டாள். திருமகள் அவள் மார்பு சேர்ந்து விட்டாள். பின்னர் வெங்கடேஸ்வரரை பிரம்மதேவர் மற்றும் பெரியவர்கள் விஸ்வகர்மாவையும் வரவழைத்து சுக மகரிஷி ஆசிரமத்தில் தாமரை குளத்தின் அருகில் ஒரு அழகிய மாளிகை நிர்மாணிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டாராம். அதற்கு இணங்கி விஸ்வகர்மா ஒரு அழகான மாளிகையை நிர்மாணித்தான். ஒரு நல்ல முகூர்த்த நாளில் அம்மாளிகையின் திருமகள் பிரவேசித்தாள். பின்னர் சுகமகரிஷி அம்மாளிகைக்கு அருகாமையிலேயே ஒரு கிராமத்தை நிர்மாணம் செய்தாராம்.
விஸ்வநாதனின் எழுந்தருளியிருக்கும் மலைக்கு 7 பெயர்கள் உண்டு. அவை வருவதற்கு காரணம் ஆதி சேஷன் உருவத்தை ஒத்திருப்பதால் சேஷாச்சலம், தேவர்களும் நிலை கொண்டிருக்கும் காரணத்தால் வேதாச்சலம், கருடனல் பூலோகத்தை அடைந்த காரணத்தால் கருடாச்சலம், விஷன் என்னும் அரக்கன் அங்கே மரமடைந்து மோட்சம் பெற்றதால் விஷாப்திரி, அஞ்சனா தேவி தவம் புரிந்து ஆஞ்சநேயர் பெற்ற காரணத்தை அஞ்சனாத்ரி என்றும் கூறுகின்றனர். தந்த்ரயோ வேத அன்வசுஜ்யந்த தான் ஹஸ்தே குருத அதா சீதா சாவித்ரி சுமங்களீர்யம் மதோரிமாகும் சமேதபஸ்யத சௌபாக்யமத்வை தத்தாயாராஸ்தம் விபரேதன. ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரணசமூர்த்தோஸ்தி பவந்தோ மகாந்தோ ந गृह्णन्तु சுமுகூர்த்தோஸ்து. பிரஜாபதிஸ்தாமகம் ராஜானமசృజత தந்த்ரயோ வேத அன்வசృஜ்யந்த தான் ஹஸ்தே குருத அதः சீதா சாவித்ரி சுமங்களீர்யம் மధుரிமாகும் சமேதபஸ்யத சௌபாக்யமத்வை தத்வாயாதாஸ்தம் விபரேதன. भूदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारणसमूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तु न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. देवसविदप्रसव अग्नेयप्रथमो देवतानागंसोहस्य प्रजामुद्भाषात् तदेकं राजावरणमन्यदामधेयगुस्त्रीवत्रमहनरोधात् स्वाहा यमामग्निस्त्रायताङ्गारहवत्यः प्रजामुद्भाषात् तदेकं राजावरणमन्यदामधेयगुस्त्रीवत्रमहनरोधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्वदिहे मद्वाचमुदया त्वां वत्सराचके स्वाहा तत्त्वायां ब्रह्मणा वन्दमानस्दाशाः तेजमानो हविर्भिः अहेडमानवर्णेह बोद्धरिं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्ने वर्णस्य विद्वान् देवसेडवयासिष्ठाः यजिष्ठो पण्डितमस्सो हिजानो विश्वाद्वेषांश्च प्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नोऽग्ने मो भवति नेदुस्यास्यावसोऽव्यष्टौ अवयक्षणो वर्णं ब्राणो बिहिमृडिं सुहोनेधि स्वाहा तमग्ने अयास्तियासन्मनसा इतः अयासन् हव्यमूषेयानो देहि वे जग्गु स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ सु स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ऐते नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवस्मितः प्रासावीः ओं भूः
अथ पूर्वोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसुवा इमां लाजान्ति आज्योऽभिगार्य इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजुषा स्वायुषोदोहितेनाग्मसेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्या इव अतिगाहे महेत्रः इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहितेनाग्मसेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहितेनाग्मसेनोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः ओं भूस्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन मुग्गस्थाः नुमतेन मुग्गस्थाः सरस्तेन मुग्गस्थाः देवसुतः प्रासावीः ओं भूतिवृत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्दिरप्रजातनात् प्राश्तात्मतो देववैष्णवं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसुतः प्रसवा ओं मतो देवाहुन्द्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृतानि वसुसै इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिव्यवचक्षुरादग् स्वाहा तद्यप्रासवन्यमोजार्ध्रवागं दस्सविन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसुतः प्रासावीः ओं भूद्विरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलपुष्टा तन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसुतः प्रसवा यदस्य कर्मणोतिरिदं विद्यान्यूनमिहाकरम् अग्निषष्ठं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते सुधावतावतेनां कामानागसमुद्रत्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्ने नदाय स्वाहा अग्ने नवदे स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमुष्मे स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनं इन्दावोदर्पुनरः जातवेदापि स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्मनेन्द्रबृहस्पति पुनन्व्याश्व्याश्वं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा भेजुन्दुष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा द्युराध्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कृतमत्तिनो अग्निं अतिरिक्तं कर्मणो क्षेनमग्नः पर्वान् प्रणेति कल्पयन् स्वाहा कदा देवान् स्वाहा यथोश्यषधीमे समिधस्य तेजोमय देहि स्वाहा यमस्य धीमे त्यर्मे पाय स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे पाय स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाय स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे पाय स्वाहा सप्तदे अग्ने समिध सप्तैफा सप्तर्षः सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्ति सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवैर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधनस्पतिन्दर्वासस्य भुक्तम् अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं देवैर्जीर्णं पृथ्वी जीर्णं वोषध वनस्पतिगन्धर्वासुरस्य जीर्णं समन्तां भविष्यावतेन समात्यस्वसम्मद्भिः समिन्द्रेण विश्वे देवे विरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तरिषा सप्तर्षः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा इन्द्री सप्तयोनिरावृण स्वागुदेन स्वाहा प्रदान विद्वानुष्टब्देन पूर्णमावतिञ्जय मनसा प्रजापते स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो वृद्धस्त्रिपदो
ब्रह्माद्या सृप्यन्तां मोषधं सुन्दरवासृप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्षीं ऐजन्मगस्तास्तेर्मगस्तादे प्रासावीः पूर्णमति पूर्णमे भूयासः दर्शन्मे भूयासः राजाः ग्रंथिं विसृज्य अध्यक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामावोषधयो मृदां बृहदेस्तदिवं गच्छ ततो देवसदनं सिद्धन्तां देवसदनं भूतस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कस्वस्य त्र्यायुषं तद्देवानां त्र्यायुषं तन्मयस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदर्शवर्षे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदर्शवर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्ठामयो भोस्तान ऊर्जेदाद्रा आपोजनीय साधनः यत्तेज्ञे तेजस्विना तेजस्विना भूया समृत्यज्ञे रस्विना ज्योद्भ्राजो दातु योक्षसूर्यन्दृशे यवतगान् मतोर्णव आद्भ्राजमानसुमध्या समाभ्रभोरोहिताक्ष सूर्य प्रसन्मनसा बनातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासना नित्यदन्तवया देवान् तत्पूर्णं दास्मे करोमि यद्य सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमान्मः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्ञभारं निवेदयामि गुरुभारं निवेदयामि आदित्यं प्रगच्छामि सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, எம் பெருமானின் திரு கல்யாணத்தில் பொறியிடுதல் என்கிற லாஜஹோமம், பின்பு அக்னிக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய பூர்ணாகுத்தி இனிதே முடிந்தது. இனி எம் பெருமானின் திரு கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். வாரணமாயிரம் குலவலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றதான் என்றதில் பூரண பொற்குடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழினான். அந்த எம் பெருமானையே தினந்தோறும் நினைத்து அந்த எம் பெருமானை தன் மணாளாராக அடையும்
தனது வேட்கையும் கனவிலே கண்டு அந்த கனவில் தனது கல்யாணத்தை நண்பர்களிடம் சொல்வது போல் அந்த கனவிலே அனைத்தும் நடந்ததைப் போல இந்த பாசுரத்தை எடுத்துச் சொல்வதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் 10 பாசுரம். அந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண சமயத்தில் தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது அனுசந்திப்பது வழக்கமாகும். இதை தினமும் பாராயணம் செய்பவர்கள் நல்ல கணவர்மார்களையும் நல்ல மக்களையும் பெறுவதே என்பது இதனுடைய சிறப்பு. அடுத்தது நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். எம்பெருமானை நாடி மாமலை ஏறாத கால்கள், எம்பெருமானை கூப்பி தொழாத கைகள், எம்பெருமான் நாமவை கேட்காத செவிகள், எம்பெருமான் காணாத கண்கள், எம்பெருமானை பாடாத நாவு, எம்பெருமானை வணங்காத சிரசு, இவை இருந்தும் இல்லாதாமை என்பார்கள் பெரியோர்கள். அது மட்டுமல்ல, அந்த எம்பெருமானை இத்துடன் சேர்த்து பக்தி என்கிற உணர்வை இருந்தால்தான் நம்மால் உணர முடியும். அந்த திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் திருக்கல்யாண வைபவத்தில் மாலை மாற்றுதல் சம்பிரதாயம் நடைபெறும். அதாவது மாலா பரிவர்த்தனம். மணமகனும் மணமகளும் ஒருவர் மாலை மாற்றி கொள்வதில் அவருக்குள் இடையே உள்ள அந்த இடைவெளியை நெருக்கம் கூறியதாம். புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமான் தோள்களில் சூடிய அந்த முகூர்த்த மாலையை முதலில் எம்பெருமான் தோள்களில் இருக்கும் மாலையை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்துவிட்டு அவள் சூடிய மாலை அழகு பார்த்த பின் அந்த மாதவன் திரு தோள்களிற்கே வந்து சேர்ந்தது. அந்த மாலை இப்போது இதோ மாலை ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டிக்கு வந்து சேர உள்ளது. கோவிந்தன் சூடிய மாலை கோதாதேவிக்கு அமைவது பொருத்தம்தானே? அவள்தானே சுடி கொடுத்த சுடர் கொடி. ஆகவே அந்த சுடி கொடுத்த சுடற்கொடித்தான் தோளில் சூடி அழகு பார்த்த பின் அதே மாலை அவளது மணவாளரான எம்பெருமானுக்கும் சேர இருக்கிறது. கோவிந்தனுக்கு அந்த தாயார்கள் இருவரும் சூடிய மாலை எத்தனை பிரியமானது என்பதை அந்த மந்த்ராவதனமே நமக்கு தெரிவிக்கிறது அல்லவா?
वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ